गुड मॉर्निंग गाइस। सो जैसे हम लोग कल अपने कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में एक थ्रेड के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, सम गाइस आस्क्ड मी that give us some real example, how do you do calendar spread and how do you manage it. So uh, when the fall came on 31st August, this particular day, I was not sideways. मैं उस टाइम पे भी I was trading with bullish bias till the time these three lines were not breached. So जिस दिन मार्केट ने ये चीज बनाई, from that day onwards I started trading with a sideways bias because मुझे लगता है कि इंडेक्स को गिराना इतना मुश्किल नहीं होता. सो इफ देयर हैज बीन अ ट्रेंडिंग फेज, देयर विल बी अ accumulation or distribution phase. After that we will have another leg of either selling or buying. So I was expecting sideways movement. Okay, so throughout this particular period मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे सिर्फ साइडवेज स्ट्रेटजीज ली. आई वाज हार्डली एवर बुलिश. सो फॉर एग्जांपल सेक, मैंने अपने 18th सितंबर के एनालिसिस में ये चीज कही थी कि राइट नाउ मार्केट इज साइडवेज. आई डू नॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू गो एनीवेयर और आई डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. ओके, द काइंड ऑफ सेटअप जो हमारे पास यहाँ पे बन रही थी, let me just delete this. Okay, yeah, let me just delete this. Okay, there were two kinds of setup that were forming. One was that we are highly sideways, and second thing is that after trying to go down, जो bulls हैं, they were trying to cross 11,600. So this was a test. This was a test to break 11,600. Here it was a test. Here it was a test. So I was pretty much confident that right now I don't know what happens, but if this neckline is broken to upside, there might be some movement to the upside. And at the same time, if this neckline is broken, this particular neckline, then we may see some downward action. So based on that, at this particular point when market was here, since I did not pick any direction, मैंने यहाँ पे एक कॉल कैलेंडर बनाया. In that call calendar, I sold 11,650 call. इसको मैं रेड कर देता हूँ because I have sold it, है ना. And of the next week, I bought 11,800 call. Second thing is, नीचे की साइड को I was expecting a break, but ज़्यादातर मुझे लग रहा था कि 11,500 is the point where most of the struggles happen, because कहीं पे मार्केट नहीं गई थी तो मुझे था कि 11,500 के पास it will close. So मैंने एक पुट कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट कर दिया where I sold 400 पुट. इसको मैं रेड कर देता हूँ because this is something I've sold. और मैंने 11,200 की पुट जो अगले वीक की थी उसको मैंने बाय कर लिया. It was not an iron condor. It was kind of it was you can say calendar condor. Okay, so market was at this point. So मैंने उस दिन एक बात बहुत साफ कही थी, because we are sideways for long time. जब भी एक तरफ की डायरेक्शन आएगी तो मैं उसी टाइम पे अपनी गलत साइड को खत्म कर दूंगा और विनिंग साइड के साथ I will stick. So this is how it went actually. So this was the trade that I took. 24 सितंबर की 11,650 की कॉल मैंने 2,250 क्वांटिटी के साथ 54.39 पे सेल की, और 11,800 की जो कॉल थी वो मैंने 49.7 पे बाय की. ओके, सो इफ यू सी, मेरा इस ट्रेड के अंदर जो नेट क्रेडिट था that was 4.69 पॉइंट. ओके, एंड what I was expecting is कि अगर मार्केट 11,500 के आसपास रह गई, this will go to zero, and this might come from
49 to 25 due to theta decay, but it will definitely not go to 0. Similarly, let me just correct it. Yeah, similarly मैंने 11,400 की पुट को 44.62 पे सेल कर दिया एंड 11,200 की पुट को 45.59 पे मैंने बाय कर लिया. नाउ इफ यू लुक एट दिस, इट वाज अगेन अ माइनर नेट डेबिट स्ट्रेटेजी ऑफ 0.97 पॉइंट. सो इसके अंदर भी मेरी उम्मीद थी कि अगर मार्केट 11,500 के आसपास रह जाती है, बिकॉज 11,200 इज लिटिल फार, यहाँ पे 150 पॉइंट का स्प्रेड है इसके अंदर. This is a spread of 150 point. This is a spread of 200 points. I was expecting कि this might go to 0 and this might go to 16 or 17. So collectively when I talk about PL, मेरी expectation थी कि इस trade के ऊपर in my best case scenario when market does not break to either side मुझे 96,000 का profit हो सकता था. Now this is projected profit और projected loss. कैलेंडर स्प्रेड के अंदर मुझे पहले नहीं पता कि क्या हो सकता है. सो आई वॉज विलिंग कि मेरी एक साइड जो है वो प्रॉफिट पे जाएगी और दूसरी साइड मेरी लॉस पे जाएगी, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकती है, बिकॉज इतने लंबे टाइम के अंदर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सी द वॉलेटिलिटी एंड देन स्टिक विद द पोजिशन. क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पे आई थिंक मैंने डिस्टेंस बहुत कम छोड़ा हुआ था, जो विजिबली यू कैन सी कि बड़े आराम से निफ्टी के लिए नेविगेट करना इजी है. सो उसके अंदर भी क्या था कि इवन इफ आई एम गेटिंग आउट ऑफ लेट्स डिस्कस अबाउट कि मैं कैसे अपने वर्स्ट केस सिनेरियोस डिस्कस करता हूँ. अगर मैं इसके अंदर 1 या 2 रुपए का लॉस लेके भी निकलता हूँ, देन ऑल्सो इट इज लॉस ऑफ 5,000 फॉर मी. बट अगर एक साइड भी ज्यादा गिरती है तो दिस कैन गो टू 0, दिस कैन गो टू 20. Okay, and even if this goes to 18 where I'm losing minor in it, है ना, when I'm making 2 rupees, then also I'm making 50,000 from this trade. जब मेरी नीचे वाली जो ये ट्रेड है ये कॉस्ट टू कॉस्ट आती है. लेट मी जस्ट पुट अप इसका LTP कितना आ रहा है. सो व्हेन इवन 3 पॉइंट्स का भी लॉस हो रहा था मुझे, या मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा था, मेरे को 45,000 का प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर. बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बड़ा आ जाता है, देन ये जो वैल्यू है 20 की, ये गिर के इवन 12 तक आ सकती है, जिस केस के अंदर मेरा मेरा जो लॉस है या फिर मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 46,000 से 45,000 से इवन 26,000 तक भी जा सकता है. सो दैट मीन्स कि इन एनी केस 0 एंड 20 इज द पॉइंट जहां पे मुझे इसके ऊपर मैक्स वेट करना है. दैट मीन्स मेरा एक्सपेक्टेड बेनिफिट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर मुझे 24.69 पॉइंट्स मिलेंगे. सो नाउ व्हाट हैपन, जैसे मैंने इस पोजीशन को एग्जीक्यूट किया, इस पॉइंट पे I am just showing the 5-minute charts so you guys can understand ki what happened that time. So yeah, इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने इस पोजीशन को एग्जीक्यूट किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मार्केट, इट सडनली स्टार्टेड ब्रेकिंग टू द अपर साइड. ओके, सो जो ये दोनों पोजीशंस थी ये एक साथ मूव कर रही थी. सो इफ इट वेंट टू 54, इट वेंट टू 59. प्रैक्टिकली मुझे सिर्फ माइनर सा लॉस हो रहा था. इफ इट वेंट टू 60, इट वेंट टू 65. मुझे प्रैक्टिकली कोई ज्यादा लॉस नहीं हो रहा था, सो आई कैन होल्ड. बट सडनली उसके बाद यू कैन सी कि यहाँ पे एकदम से ड्रॉप आना शुरू हो गया, एंड दिस ड्रॉप केम वेरी सडनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो उस टाइम पे नाउ जब इतना बड़ा फॉल आता है, यू हैव टू बी रेडी कि व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो in that case what I did was कि जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगी, this position started coming into loss
it went to 65, but this 11200, let me just open my original journal so that I can take the prices जहां पे मैंने इस चीज को किया था. या सो मेरी ये वाली पोजीशन लॉस में आनी शुरू हो गई और ये वाली पोजीशन जो थी ये प्रॉफिट में आनी शुरू होगी. सो इफ इट वाज गोइंग टू 765, इट वाज गोइंग टू 63. माइनर लॉस था बट इट वाज हेजिंग. बट प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है कि आई हैव कलेक्टेड अ प्रीमियम ऑफ 44 हेयर. दैट मीन्स कि 11356 तक मेरी पोजीशन ये वाली प्रॉफिट में नहीं आएगी. बट अगर फॉल उससे ज्यादा आता है तो एक टाइम के बाद this 11200 put will stop aggressively hedging the 11400 put loss. So what I did was कि इस 45.59 वाली जो पोजीशन थी इसको मैंने प्रॉफिट में बुक कर लिया. Okay, I booked it at 65.57. Okay, and I closed it at that moment itself. And here इसकी जगह पे मैंने 11300 की ये वाली जो पुट थी इसको रोल अप कर दिया. अब हुआ क्या, नाउ दिस वाज एट अप्रोक्सीमेटली 79 एंड दिस वाज बॉट एट 88. बट अब हर 1 पॉइंट मूव के साथ करंट वीक की नेक्स्ट वीक वाली भी अप्रोक्सीमेटली 0.85 मूव कर रही थी. सो हेजिंग और फर्दर हो गई. रोल अप करने का रीजन क्या है? रोल अप करने का रीजन ये है कि इफ द फॉल इज नॉट वेरी एग्रेसिव एंड इट विल जस्ट कूल ऑफ, तो 356 तक हम इसके अंदर सेफ हैं और एकदम से जो विक्स इंक्रीज होती है उसके अंदर इसके प्राइसेस इतने ज्यादा गिरेंगे नहीं. सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट बाय द एंड ऑफ द वीक अगर मार्केट 11400 या 11450 के आसपास भी एक्सपायर होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस एंड आवर पोजीशन कैन स्टिल गो आउट इन प्रॉफिट when this goes to zeros and this goes to 25. you can see कि हमारा साइडवेज और वोलाटाइल मार्केट के अंदर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कैलेंडर्स के अंदर ज्यादा रहती है. हमारी प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब डायरेक्शन पकड़ता है. सो यहां पे मैंने इसको हेज कर दिया. बट नाउ अगले दिन व्हेन मार्केट ओपनड, जब अगले दिन मार्केट ने ओपन किया, मार्केट वाज नेविगेटिंग थ्रू दिस पॉइंट और मेरी ये पूरी स्ट्रेटेजी अभी लॉस में नहीं थी. बट एट दिस पॉइंट व्हेन आई चेक द मार्केट, दैट टाइम डॉ -300 थी एंड देयर वाज एक्सटेंसिव कॉल राइटिंग ऑन 11500 calls and 11600 calls. The kind of option writing which I knew that the fall is going to come. I was not sure how much fall it will be, but I knew the fall was going to come. So I immediately started exiting my put side position. So what I did, so when I exited the put side positions, this was the whole scenario. What is the date? It is 21 September. 21 September 2020. So you see, जैसी मार्केट फॉल आने वाला था उस टाइम पे मैंने इन सारी पोजीशंस को यहां से क्लोज कर दिया. सो जिसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना था, दैट पोजीशन गेव मी 8500 प्रॉफिट, बिकॉज जो मैंने बाय की थी पोजीशन एज अ फर्दर हेज वो प्रॉफिट में निकली. इसके ऊपर जो मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ था वो यहाँ पे कवर हो चुका था. इफ आई सी इज इक्वल टू सेम 3-4 पॉइंट्स का इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट ही था. 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट था. कुछ ब्रोकरेज के अंदर यहाँ पे वैल्यू निकल गई. बट पॉइंट इज कि आई वाज एबल टू गेट आउट फ्रॉम दिस ऑन अ कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस. ये मेरा, इसको मैंने रोल किया था और इसको मैंने फर्दर हेज किया था. अब जब ये नेक्स्ट फॉल आया, मेरी नेक्स्ट पोजीशन ये थी कि मुझे जो यहां से प्रॉफिट मिल रहा है ये मैंने सोचा हुआ था कि मुझे 20 पे लेना है और मेरा लॉस इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए. बट सडनली द काइंड ऑफ फॉल दैट केम, उससे ये तो जीरो होने के चांसेस ये तो जीरो होने के चांसेस ऑलमोस्ट श्योर थे. बट व्हाट हैपेंड वाज कि ये वाली जो 11800 की जो कॉल थी
वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसका प्रीमियम डिके हो गया एंड इट केम टू 20। तो नाउ आई हैव टू ऑप्शंस। अब मुझे एक चीज पता है इस टाइम पे कि व्हेन this type of fall is coming into the market, there is very less chances that it will go up. So what I did कि मुझे सिर्फ एक नाम की hedging लगानी थी वहां पे। So इस पोजीशन को I covered at 19.1 immediately, और उसकी जगह पे सिर्फ एक नाम का hedge करने के लिए so that my margin requirement remains less, मैंने इसको एक सिंपल 2 रुपीस की कॉस्ट के ऊपर 2 रुपीस की कॉस्ट के ऊपर इसको मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सॉरी बियर कॉल स्प्रेड के अंदर। सो इन ऑल अगर मेरा यहाँ पे 23 का प्रॉफिट होना था तो आई वॉज एबल टू गेट 23 पॉइंट ऑफ प्रॉफिट। इसको यहाँ पे मैंने 3.25 पे कवर किया। सो कलेक्टिवली इन दोनों पोजीशंस पे मैंने इस तरीके से प्रॉफिट लिया था एंड दिस इज हाउ आई हैज इट। सो एनीवेज मेरा जो टारगेट था इस सारी पोजीशन के ऊपर दैट वाज 44-45,000। आई मैनेज टू मेक 50,000 प्रॉफिट on this particular trade after brokerages and after charges. So this is how we can do calendar spreads and we can hedge the positions. So this is just one example. Different scenarios के अंदर हम calendar spread को different तरीके से use कर सकते हैं, but one has to be very creative. Sometimes I even sell options like one step in the money option I sell and one step out of the money I buy. For example, I will be selling at 150 and I will be buying at like 145 when I'm extremely bullish. In that case, my target is sometimes 60 points or 50 points, but I may only get 30 points or 20 points if trend is very bullish or bearish. But if the trend is sideways and you have the capability to hold the position to the conviction, then इस strategy के अंदर profits बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। But again इसके अंदर आपकी journal अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसको एग्जीक्यूट करने की वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर आप उसको मैनेज कैसे करोगे, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू एग्जीक्यूट दिस। तो दिस इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी अगर आप इसको समझ सको। इसके अंदर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है व्हेन जो आपने ये कॉल हेजिंग के लिए बाय की होती है, इवन दिस स्टार्ट्स टू ब्रेक। For example, in our case, if market fell below 11,300 or went above 11,800, उसके बाद this strategy is highly predictable. So always cut the losses and do active management. So these are the two examples of how I did the calendar spread. I did the double calendar spread. You can say it calendar condor, whatever you can say, but I use it all the time. I hope you like this video. Okay, so if there is any clarification needed, you just please post the comments and I will be happy to reply. If you like the video, please share it with others. Thank you.